Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad School's Sahiwal Campus online lectures. This lecture is for grade 6 for the subject of English. We are doing unit number 15, extract from a novel, A Cow Called Boy. And this is lecture number 4 from this unit. In this lecture, we are going to learn about reported speech of future tense and homophones, and in the end we will learn about writing a story. So please open your English classwork notebook and write down serial number, date and topic in your index page. Dear grade 6 students, before we begin, make sure that you have your English students book, your English classwork notebook and your complete stationery with you. When you have to do writing work on your notebook, you will do it with your blue ink pen and blue marker. And when you are required to write down something on your book or workbook, you will do that with your lead pencil. So you should have your sharp lead pencil with you and your neat eraser. Listen to the teacher attentively and very carefully and write down everything said by your teacher in book, notebook or workbook, wherever teacher says you. If you don't understand anything, you can rewind the video and listen it again. Okay, please open your English students book, page number 110, where the topic of reported speech of future tense is given. Language reported speech of future tense. In reported speech of future tense, we actually replace will with would. सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. जब हम उसे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं तो एक्चुअली विल रिप्लेस हो जाता है वुड के साथ और हमारा रूल क्या बन जाता है, वुड एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. For example, Josh said that it would be over in no time. Okay, when we will do an exercise for this rule, you will surely understand that how to write down the reported sentences of future tense. On page number 110, question number 1 is what Josh says to his mother when he was given the calf. Okay, on page number 110, क्वेश्चन नंबर 1, एक्चुअली यहाँ पे 4 सेंटेंसेस हैं. 4 सेंटेंसेस वो हैं जो जॉश अपनी मदर से कह रहे हैं और यहाँ पे डायलॉग में एक्चुअल सेंटेंसेस लिखे हैं, जॉश के एक्चुअल वर्ड्स लिखे हैं, मतलब डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है. आपने इन सेंटेंसेस को रिपोर्टेड बना के अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करना है. सो प्लीज़ ओपन योर क्लास वर्क नोटबुक एंड प्रिपेयर टूडेज क्लास वर्क पेज. Index you already have written. You will write down the solution of this exercise in your classwork. Okay, the first sentence that Josh says, what is this? He says that I will look after him. Okay, here in this sentence subject is I and I will be changed into he because Josh ये बात बोल रहे हैं ना, और Josh के लिए जब हम Josh के अल्फाज बताएंगे तो हम क्या कहेंगे, Josh ने जब खुद बोला तो उसने बोला I. जब हम Josh के बारे में बताएंगे तो हम कहेंगे he. I will be changed into he and will be changed into would, and the rest of the sentence will be the same and it will become Josh said that he would look after him. Write down the solution in your notebook. Sentence number 2, Josh says, what is he saying? He says that I will clean up my calf. Here again I will be changed into he and will be changed into would और ये sentence बन जाएगा Josh said that he would clean up after his calf. Of course उसने तो my बोला था ना, लेकिन जब हम जॉश की बात को रिपोर्ट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, his calf. Clear? Sentence number 3 is you will learn to love boy. अब जॉश अपनी मदर से क्या कह रहे हैं, you will learn to love boy. इस सेंटेंस में कोई प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, सिर्फ will चेंज हो जाएगा would में. Josh said that you would learn to love boy. Boy कौन है? Yes, boy उसके काफ का नाम है. Sentence 4 is we will have a new member of the family. अब जॉश ने कहा है we will have, तो जब हम उसकी बात बताएंगे तो हम we को they में चेंज करेंगे. Of course हम अपने बारे में तो नहीं कह रहे ना,
हम जॉश और उसकी फैमिली के बारे में कह रहे हैं। जब हम जॉश और उसकी फैमिली के बारे में बात करेंगे, उनकी बात को रिपोर्ट करेंगे, तो वी चेंज हो जाएगा दे में। वी विल हैव अ न्यू मेंबर ऑफ द फैमिली, ये क्या बन जाएगा? दे वुड हैव अ न्यू मेंबर ऑफ द फैमिली. Write down this complete solution in your classwork notebook. Okay, second exercise from the same page is report what Josh classmates said. पहले जॉश अपनी मदर से ये बातें कर रहे थे, अब 4 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो जॉश के क्लासमेट्स उनसे कह रहे हैं। हमने उन सेंटेंसेस को भी रिपोर्टेड में चेंज करना है। अगेन यू विल हैव टू राइट डाउन दिस सोल्यूशन इन योर क्लासवर्क नोटबुक. ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज कौन कौन है ये? सोनिया एंड एलिना. सोनिया एंड एलिना क्या कह रही हैं? वे विल कम एंड विजिट बॉय. हेयर अगेन वी विल बी चेंज्ड इनटू दे, will be changed into would, and it would become Sonia and Elena said that they would come and visit boy. Here boy B is capital. grade 6 boy का B कभी capital हो सकता है? No, because ये तो common noun है ना. boy, girl, bag, school, ये तो common nouns हैं. तो common noun का first letter तो capital नहीं होता. फिर यहाँ पे boy का B क्यों capital है? क्योंकि यहाँ पे बॉय का मतलब लड़का नहीं है, यहाँ पे बॉय का मतलब है बॉय नेम है उस काव काफ का. ओके, इसलिए यहाँ पे बी कैपिटल है क्योंकि ये नेम है. सेकंड सेंटेंस इज सेड बाय मोहसिन एंड मोहसिन सेड दैट आई हैव स्ट्रोक्ड हिज ईयर्स. यहाँ पे फिर हम जब मोहसिन की बात बताएंगे तो आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में, और हैव हमेशा हैड में चेंज हो जाता है. Mohsin said that he had stroked his ears. Third sentence is said by Rahat, and Rahat ने क्या कहा? A cow came to school. Here this is simple past tense, came, and came when the second form is here in the direct speech. When we will change into reported speech, it will be changed into past perfect, had and verb third form. A cow came to school किस में चेंज हो जाएगा? राहत exclaimed that a cow had come to school. Fourth one is fourth sentence is said by यास्मीन, और यास्मीन ने कहा I want a pet cow. यास्मीन said that she wanted a pet cow. सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो गया? सिंपल पास्ट में. और I किस में चेंज हो गया? she में, बिकॉज हम यास्मीन की बात बता रहे हैं. यास्मीन ने अपने बारे में आए कहा, जब हम उसकी बात बताएंगे तो हम ऑफ कोर्स कहेंगे शी वांटेड अ पेट काउ. कंप्लीट दिस सॉल्यूशन इन योर क्लास वर्क पेज. ओके, नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 111 वी हैव अ वर्ड स्टडी. टॉपिक ऑफ homophones. Homophones are the words that have the same sounds but have different spellings and meanings. डियर स्टूडेंट्स, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट वाली साउंड सेम होती है. फॉर एग्जांपल विंग, स्टिंग, बिंग एट्सेट्रा. यहाँ पे आई एन जी, इंग साउंड जो है वो सेम है. ऐसा ही है, इस तरह के वर्ड्स होंगे वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिनकी लास्ट वाली साउंड सेम होती है. लेकिन होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स जो कंप्लीट वर्ड होता है वो कंप्लीट ही उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, सिर्फ उनके स्पेलिंग्स और मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं. और समटाइम्स स्पेलिंग भी सेम होते हैं, सिर्फ मीनिंग्स ही डिफरेंट होते हैं. वो हमें उन वर्ड्स के सेंटेंस में यूज़ से पता चलता है कि इस वर्ड का यहाँ पे क्या मीनिंग है. फॉर एग्जांपल लाइक फुट, फुट, एफ डबल ओ टी फुट पाँव, और एफ डबल ओ टी फुट स्केल. ठीक है, इस तरह के जो कंप्लीट सेम प्रोनाउंसिएशन वाले लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स वाले वर्ड्स होते हैं उनको होमोफोन्स कहते हैं. इज इट क्लियर? ओके, फॉर एग्जाम्पल लुक आउट फॉर अ बिग बियर. द कपबोर्ड आर बेयर. ओके, जो फर्स्ट वाला बियर है ये क्या है? ये वो है एनिमल है, बियर. और सेकंड वाला जो बेयर है इसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल बियर की तरह है, बेयर, लेकिन इसका मतलब है खाली, नेकेड, ब्लैंक. द कपबोर्ड्स आर बेयर, अनकवर्ड. बेयर मीन्स हियर द सेकंड बेयर मीन्स अनकवर्ड. ओके, अब ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ इनके स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं और इनका मीनिंग डिफरेंट है. दीज आर कॉल्ड होमोफोन्स. ओके, यू हैव एन एक्सरसाइज ऑफ होमोफोन्स ऑन
page number 111, and the exercise is complete each sentence with the correct word from the purple box. पर्पल बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन हैं, आपने उनमें से वर्ड्स पिक करने हैं और अपने यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है विद योर लेड पेंसिल. फर्स्ट सेंटेंस इज ऑफ डैश यू कांट ब्रिंग अ काउ इन हियर एक्सक्लेम्ड द टीचर. ऑफ कोर्स you can't bring a cow in here exclaimed the teacher. Second is he stroked the dash hair on the animal's back. He stroked the wrap hair on the animal's back. Third one is we were not dash to climb over the wall. We were not allowed to climb over the wall. Fourth is I am going to wrap Jonty's present. Fourth one is I am going to wrap Jonty's present. Fifth is cow don't dash on other animals. Cow don't prey on other animals. PRAY प्रे क्या होता है? दुआ मांगना. और PREY प्रे क्या होता है? शिकार करना. Sixth one is the priest stood by the altar in the church. Okay, altar ALTER altar होता है चेंज करना और ALTAR होता है स्लैटर हाउस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? स्लैटर हाउस वाला altar आएगा. The priest stood by the altar in the church. Seventh one is let us pray. The priest said, let us pray. Eighth one is he recited the poem dash to the class. He recited the poem aloud to the class. वो पहले जो हमने अलाउड पढ़ा वो था इजाज़त वाला, परमिशन वाला, और ये अलाउड क्या है? ऊंची आवाज़ में, loudly. He recited the poem aloud to the class. Have you done this exercise on your book? Good. Okay. Next work is writing portion. Write a story with this title, and the title is The Day My Pet Came to School. Okay, suppose आपका कोई पेट है और आप उसके बारे में बता रहे हैं कि आप अपने पेट को स्कूल लेके गए. जैसे ये जो स्टोरी थी वो जॉश के बारे में थी. जॉश का पेट कौन था? एक काफ था, और वो उसे एक दिन स्कूल ले गए और वहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा फ़न किया. और वो फ़न उसने किस तरह किया वो आपने पूरी स्टोरी में पढ़ लिया. अब आप सपोज़ करें कि आपका एक पेट है. सबसे पहले तो आप ये सोचेंगे कि आपका पेट होगा क्या. फिर आप ये सोचेंगे कि आप उसे स्कूल लेके क्यों गए. फिर आप ये देखेंगे कि जब आप स्कूल गए तो फिर सबका रिस्पॉन्स कैसा था, और फिर उसने आपके साथ पूरे दिन क्या क्या उसने फ़न किया. आप ये सारी चीज़ें अपनी उस स्टोरी में लिखेंगे. सबसे पहले आप अपनी प्लान करेंगे स्टोरी को किस तरह से. पहले आप देखेंगे कि स्टोरी की सेटिंग क्या है. सेटिंग क्या होती है? ओवरऑल सीन कि आपकी स्टोरी जो वो टेक प्लेस कहाँ कर रही है. ऑफ कोर्स अगर आप अपने पेट को स्कूल लेके जा रहे हैं तो आपकी स्टोरी भी स्कूल में ही प्ले होगी. उसके बाद आप देखेंगे करेक्टर्स. करेक्टर एक तो आप खुद हैं, दूसरा आपका पेट है, तीसरा आपका ऑफ कोर्स अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका टीचर होगा और कुछ आपके क्लासमेट्स होंगे. फिर आप देखेंगे कि आपकी स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है, आपका पेट है कौन और उसका नेम क्या है, और आप उसे स्कूल क्यों लेके जा रहे हैं. ये सब का सब क्या है, ये इंट्रोडक्शन में आ जाएगा. फिर आप प्रॉब्लम देखेंगे कि आप स्कूल गए तो सपोज़ आपको प्रॉब्लम ये आया कि आपका जो गेट कीपर था उसी ने आपको रोक लिया, या सपोज़ आपने गेट कीपर से बीच बचा के आप अंदर चले गए और आगे आपके टीचर, जिस तरह जॉश की टीचर परेशान हो गई थी कि ये क्यों अपने पेट को यहाँ ले आए हैं, इस तरह सपोज़ आपका टीचर भी आपको वहाँ पे स्कोल्ड कर रहा है, स्नब कर रहा है कि आप इसे क्यों ले आए हैं. दिस विल बी प्रॉब्लम. उसके बाद आप इवेंट्स लिखेंगे कि उसके बाद क्लासरूम में जाने के बाद हुआ क्या क्या. जितने भी इवेंट्स हैं, एक इवेंट है, 2 है, 3 हैं, जितने भी वहाँ पे जो कुछ भी बातें होती हैं और जो कुछ भी आपका जो पेट है वो शरारतें करता है और सब लोग हंसते हैं या डरते हैं, क्या होता है, आप वो सब कुछ यहाँ पे लिखेंगे. और एंड पे फिर आप उसका एक क्लाइमेक्स के साथ एंड कर देंगे अपनी स्टोरी को. यू जस्ट हैव टू प्लान योर स्टोरी फर्स्ट. यू विल प्लान योर स्टोरी विद दीज डिस्क्रिप्शंस, with these titles in your homework notebook. Is it clear? Okay.
So your homework is, note down your diary please. Your homework is from students book page number 111. I already have explained you that you will have to write a story in your English homework notebook with the same title that is given on your page number 111. Another homework is from workbook of page number 60 and 61. Is it clear? Page number 60 and 61 are about reported speech of future tense and homophones. I hope it will never be difficult for you to do these homeworks because I already have explained you everything. So good luck. This is the end of today's lecture. Allah Hafiz.